I'm your host Shaheen Arshad, and in today's podcast, we're going to be discussing about the mentorship and its importance. Let me introduce my guest today with you, Miss Maria Khalid. We have over here. Thank you so much for joining us. Thank you I for would inviting, appreciate it. Shireen. You're welcome. I would appreciate if you just give your little quick introduction to us. My name is Maria Khalid. I'm Executive Career Placement and Industrial Liaison Office at Salim Habib University. I am serving there as in this field. I am being now 2.5 years and dealing with the students and with their different issues. We are just creating industrial linkages with academia and moreover, yes. So today, as you said, that our topic is mentorship and it's important. Yeah. So I would love to share my personal experiences with you and the obstacles we face every day with the dealing Gen Zs or the young students, those who come to us for mentorship and regarding their issues. Yes. So my first question to you: what exactly mentorship means? Actually, Shireen, mentorship is a process where one person share their knowledge, skills, experiences, insights with the other person, Okay. and give them the pathway and navigate them how to be at their level. So अगर हम देखें mentorship को, तो it's very essential in every field of life, whether it's professional or personal. Yeah. We do have someone in our life जो हमें professionally भी guide करते हैं and personally भी, तो that helps us. I think better to learn from other experience rather than to feel that experience and experience that process. For me, it is very important, and when I have the mentor, I do not have to face multiple challenges. I will be guided about the insides of the field, and you can say foresee circumstances that can help me to grow and follow my ambition. Okay. So, what do you think exactly? What qualities should we look in a mentor to have one? There are multiple qualities. I can say the communication skills and approachability. A mentor should be approachable. Aisa now I need him or her, that person is not available, and he should be of your own area. But it's not necessary. But Okay. if he or she is of your own interest of area, so that can help you in a better way. Secondly, third, a person should be accessible enough and has a good networking. Okay. If the person has good network, so that can help you to build your own network and can guide you accordingly. Mm-hmm. So I think these qualities you should look for when you are asking for a mentor and you're looking for a mentor that can help Okay. you. Okay. So you just said them why. Previously, you just said like why mentors are important. That's for you, right? Yeah. So someone के उसकी लाइफ में एक मेंटोर का होना जरूरी क्यों है? So can you explain me that? हाँ, मैंने जैसे पहले बोला कि मेंटोर हेल्प करता है आपको क्योंकि वो हमारे से पहले वो सारे एक्सपीरियंसेस को फेस कर चुका होता है, वो सब चीज़ों से गुजर चुका होता है. Exactly. तो दैट कैन हेल्प अस टू नेविगेट कि भाई ये यहाँ पर हम जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, ये काम करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, इफ़ वी गो ऑन दिस साइड वी हैव टू फेस दिस कॉन्सिक्वेंसेस. सो इफ़ आई हैव एनी मेंटोर जिसके साथ मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, वेदर प्रोफेशनल और पर्सनल, और मुझे गाइड कर रहा है. Just an example, yesterday I met a girl. She is enrolled in BBA at third year. Okay. And I just had interaction with her, and she told me that now she wants to go for a computer science. After completing 3 years in BBA, now that girl wants to go in a CS field. Yeah. Pretty good. But what about that you have, why you have invested your 3 years previously in BBA? Just she said, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका स्कोप है आईटी का, बीबीए का स्कोप नहीं है. उनको अब ऐसा लग रहा है. Okay. फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें उसके पास कोई मेंटोर होता जिससे वो कंसल्ट कर सकती थी बिफोर गेटिंग एडमिशन इन बीबीए,
और वो अपने इंटरेस्ट को बताती कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, वो एक चीज़ को पूरा पोर्ट्रे करती, तो वो मेंटोर उसको हेल्प करता वेदर उसको बीबीए लेना चाहिए या सीएस लेना चाहिए. नाउ फॉर मी इट्स कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ स्किल्स, वेस्ट ऑफ एफर्ट कि आप 3 साल बीबीए करने के बाद आप सीएस में जा रहे हो. तो एट दैट टाइम उसके पास मेंटोर होता जो उसको गाइड कर सकता, तो वो इतना फिकल नहीं होती, वो अपने डिसीजन पर इंटैक्ट रहती. और यही रीज़न है हमारी सोसाइटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का, शरीन के दे डू नॉट नो व्हाट दे वांट टू डू. उनको नहीं पता होता कि उनको क्या करना है लाइफ में, किस तरीके से, व्हाट दे एक्चुअली लुकिंग फॉर. उनको अपने इंटरेस्ट भी नहीं पता होते हैं. सो दिस इज दीज थिंग्स, जो आपका मेंटोर होता है वो आपको अपने भी कुछ एरियाज ऑफ इंटरेस्ट भी बताता है कि ओके यू लाइक मैथ्स, so I think you should go for accounting finance, you should go for ACCA, CA or something like that. If I say I'm not good at maths, I'm more into art side, I'm more into social sciences, तो वो उस हिसाब से मुझे गाइड करेगा. वो मुझे कभी नहीं बोलेगा कि okay you are good at social sciences, then go do accounting and finance. No, he will never suggest me for that. So that navigate our pathway to the career. हमें बताते हैं कि किस तरीके से आई हैव टू अप्रोच इफ आई वांट टू बी अ डॉक्टर फॉर एग्जांपल, एंड फॉर दैट आई डोंट नो विच फील्ड आई शुड गो फॉर. एंड जो मेरा मेंटोर होगा दैट विल हेल्प मी कि अच्छा आपको यहाँ से कोचिंग लेना है टू बी इन एमकेट, वहाँ से कोचिंग लेकर आप एमकेट का एडमिशन वगैरह देंगी, टेस्ट देंगी, क्लियर कैसे होना है, और उसके बाद आपने ये यूनिवर्सिटी में इस टाइम पे एडमिशन ओपन होते हैं तो आपको उसमें एडमिशन लेना है. तो उसको एक पाथवे मिल जाएगा कि मुझे ये करना है. ऑन द कॉन्ट्ररी, जिसके पास कोई मेंटोर नहीं है वो क्या करेगा, वो एक तो खुद उसकी एफर्ट बहुत जाएगी, तीसरा वो कहीं पे देखेगा कि यहाँ एडमिशन है, यहाँ वो अपना एडमिशन डाल दे विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट गेटिंग नो कि भाई इसमें वो मुझसे क्या सवाल पूछ सकते हैं, am I eligible to that or not. वो बस अप्लाई कर देगा आउट ऑफ ऑडेसिटी के उसको मेडिकल में जाना, जो हमारी एक सोसाइटी में है. बिकॉज वो पूरा एक उस पाथवे को फोर्स ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो उसमें से गुजरा नहीं है. तो इन दिस वे मेंटोर हेल्प्स कि उसको बता देगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके से ये स्टेप्स है, इसको फॉलो करके आपको वहाँ जाना है. तो आई थिंक दैट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मेंटोर इन योर लाइफ. Okay, आपने ये बताया कि like why important is mentor in our lives and have their opinions on our future and taking steps ahead. ठीक है, for example एक scenario आ जाता है where there two opinions clashes, like आपका अपने ही mentor के साथ conflict हो जाता है on their opinions. What should we do in that way? Conflicts तो हर stage पे आते हैं with everyone. Yeah. ठीक है. Okay. You can sometime be in conflict with your teacher, with your parents and everyone. So with your mentor, if you think conflict किस basis पे आएंगे, एक तो ये होगा कि या तो आपका mentor आपको time नहीं दे रहा, आपका mentor जो बात कह रहा है वो आप जो चाहते हैं उसके अगेंस्ट है, या तो वो आपको उसकी बात समझाने का या तरीका उसका समझ नहीं आ रहा. ये 3-4 चीज़ें हो सकती है जिसके बेस पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. So I think the best way to deal with is communicate. One-on-one communication, like sit with your mentor and tell the problem you are facing with him. Maybe जो आप फेस कर रहे हो, until unless आप उसको टारगेट नहीं करोगे, उसको एनकाउंटर नहीं करोगे, how the other person will get to know कि आपको उनका वो मेथड समझ नहीं आ रहा जो वो उनके साथ फॉलो कर रहे हैं. उसके बाद भी अगर वो आप अपना नहीं चेंज करते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, वो कहेंगे नो आई हैव दिस लिमिटेड methodology to teach, I'll go for this. So then you have a right to complete change your mentor. And if that mentor after listening your issues or your concerns अपने behavior को या अपने उसको change करने की कोशिश करते हैं तो good to go. I think conflict resolve हो जाएंगे. Best way is communication for me. Okay, yeah. Okay, so then my next question is like what red flags should we avoid that when we are finding a mentor in our for lives?
रेड फ्लैग, यस। तो पहला तो ये हो सकता है कि आपको ज़रूरत है, वो अवेलेबल नहीं है, ना ठीक है। क्योंकि ये वाला मेंटोर और मेंटी का रिलेशनशिप है, इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन द नीड ऑफ द आवर। मुझे उस पर्टिकुलर आवर में आपकी नीड है, मुझे सजेशन चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है, व्हाट टू डू, तो आप मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। एक दफा होता है, किसी के मसले होते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, बट इफ इट्स बीइंग कांस्टेंट देन आई थिंक इट्स अ रेड फ्लैग। सेकेंडली, अगर वो मेंटोर आपको कुछ चीज पूछ रहे हैं कि मुझे एक इवेंट में जाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू रजिस्टर, वो आपको गाइड नहीं कर रहा है सही से, वो या तो वो बहुत कैजुअल ले रहा है उस चीज को, वो इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहा कि दैट इवेंट और दैट एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, फॉर योर ग्रोथ, नॉट करियर, फॉर योर ग्रोथ। तो अगर आपको लग रहा है वो आपको सीरियस नहीं ले पा रहा है इस चीज में, देन आई थिंक दैट्स अ रेड फ्लैग। वो बहुत कैजुअल अगर बिहेवियर शो कर रहा है। और what else can be, like if the person or a mentor is not responsible, it's not ready to take your responsibility, that's a red flag. जो भी mentor है वो he or she should be enough responsible to take your responsibility. उसको पता हो कि I am, अगर उसकी लाइफ में कुछ मसला होगा और एक वे आपने मुझे बताया कि आपको यहाँ रजिस्टर करना है, ये करना है, ये हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वो नहीं हो रहा, तो वो जो मेंटोर है वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। वो उसको ले कि हाँ ठीक है, दिस कैन बी, अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके। वो उल्टा काउंटर अटैक ना करे कि मेरा कसूर नहीं था, मैंने तो आपको बता दिया था, आपको तो ये करना चाहिए था। तो वो आप उसको वो ओन करे कि हाँ मैंने बताया, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी कैन मेक मिस्टेक्स, सो I think that's a big red flags. Okay. So basically, okay, thank you. अच्छा, इसके अलावा ये था कि like कुछ लोग होते हैं जो अपने mentors को blindly follow करने लगते हैं. Like have a scenario कि okay, he's a dropout, I should drop out and do something of my own. So what would be your opinion on that? For my opinion, dropout is never a choice of a person. Is always by default. Okay. और कोई ना कोई mishap होता है. Okay. कि वो किसी जगह से ड्रॉप आउट करते हैं, इधर वो उसके उनके इंटरेस्ट की नहीं होती है या वो उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, मल्टीपल रीजन कैन बी। तो अगर मैंने ड्रॉप आउट किया और आई एम मेंटोरिंग यू और मैं आपको बताऊं कि मैंने तो यहाँ पे ड्रॉप आउट कर दिया, इसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया और मैं इसमें बहुत सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, तो ड्रॉप आउट इज नॉट द रीजन कि मैं सक्सेसफुल हुआ। ड्रॉप आउट इज जस्ट द वे कि मुझे दूसरी चीज में जो मैंने उसमें अप्रोच किया है उसकी मुझे वैल्यू पता चल गई, वर्थ पता चल गई, क्योंकि वो फेस में कर चुकी हूँ। मुझे पता चल गया अगर मैंने इसमें भी उसी तरीके का बिहेवियर शो किया, इसमें सेम मेरा एटीट्यूड रहा, तो शायद मैं नहीं इसमें भी कर सकती। तो ड्रॉप आउट बताने का मकसद किसी भी मेंटोर का ये नहीं होता कि आप भी ड्रॉप आउट कर दो जहाँ भी जा रहे हो। उनका मकसद ये होता है कि टू नो योर इंटरेस्ट। आप मस्ट भी, आपने भी बहुत सारी जगह पे जॉब की होगी, कुछ आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की होंगी, कुछ आपको मजबूरी के तहत करनी पड़ी होंगी, लेकिन आपको जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आपने उसको ग्रैब किया एंड यू गो अहेड। तो इट्स जस्ट लाइक ड्रॉप आउट अगर किसी ने किया है तो किसी वजह से किया है, पहले तो वो वजह जाने, व्हाट इज द रीजन। डोंट जस्ट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग दैट पर्सन एज योर मेंटोर। तो उसको ही पहले रीजन जाने कि व्हाई वो उसने ड्रॉप आउट क्यों किया था, उसके बाद उसने जो स्ट्रगल किया, आई थिंक दैट्स द पॉइंट जो वो उसको बताना चाहता है कि मैं इधर से ड्रॉप आउट हुआ था, फिर मैंने इतना इतना स्ट्रगल किया, देन आई केम ऑन दिस पॉइंट। तो दिस इज द वे कि वो ड्रॉप आउट को हाईलाइट जो बच्चे कर रहे होते हैं या वो कर रहे होते हैं ना, कि वो फेल, उन्हें जैसे वो ज्यादातर न्यूटन की बोलते हैं कि वो तो स्कूल से निकाल दिए थे, वो इतने स्कूल जाते तो शायद नहीं हो पाते क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनको उस चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, उनको कैजुअल स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए उनके साथ ये मिसहैप हो गया। बट उसके बाद उन्होंने जहाँ पर उनका इंटरेस्ट था वो चीज़ें फॉलो की एंड ही सक्सेडेड। यू हैव टू नो वेयर यू आर गुड एट, व्हाट यू वांट, पहले ये तो क्लियर होना चाहिए।
क्योंकि आप मेंटोर भी तब बनाओगे ना जब आपको पता है आपको किस फील्ड में जाना है, तो आप उस हिसाब से उसको अप्रोच करोगे। Yeah. Okay. So that's one thing, right? Another thing is like आपके जो mentor होते हैं वो आपकी personal और आपकी career life और आपकी professional life पे effect करते हैं. Do you think that? हाँ, they do, they actually do. Okay. क्योंकि there are two type of mentoring. एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। लकीली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक ही पर्सन में फॉर्मल और इनफॉर्मल मेंटोर मिल जाता है, ठीक है। और समटाइम वी हैव टू मेंटोर्स, वन इज फॉर पर्सनल एंड वन इज फॉर प्रोफेशनल। Okay. तो जो प्रोफेशनल होते हैं दे फॉलो द स्ट्रक्चर, दे फॉलो द गाइडलाइन। एज अ सुपरवाइजर वो आपको गाइड करेंगे कि ये चीज़ें करनी है। उनके साथ आप अपने पर्सनल इश्यूज शेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, इफ़ दे आर ओनली प्रोफेशनल मेंटोर्स। हाँ, अगर आपका कोई दूसरा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों है तो आप उसके साथ अपने इश्यूज शेयर कर सकते हैं। लाइक आई हैव अ मेंटोर जो लकीली मैं उनके साथ अपने प्रोफेशनल भी शेयर कर सकती हूँ, पर्सनल भी शेयर कर सकती हूँ। इफ़ आई एम फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन माई जॉब, इन माई डेली रूटीन, इन माई लाइफ, तो आई जस्ट कॉल कि भाई मुझे ये इश्यूज हो रहा है, व्हाट आई शुड डू नाउ, तो वो मुझे उसके अकॉर्डिंग गाइड कर देते हैं। ऑन द अदर साइड अगर वो जब मेरे सिर्फ प्रोफेशनल होते तो मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ें डिस्कस कर सकती थी, पर्सनल नहीं कर सकती हूँ। एंड आई थिंक वो आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि आपके मेंटोर से रिलेशनशिप किस लेवल का है, आप कितना कंफर्टेबल है उनके साथ टू शेयर योर पर्सनल लाइफ एज वेल और नॉट, कि वो इतना ट्रस्ट वर्दी है कि आपको लगता है कि मैं उनसे अगर अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूंगी या करूंगा तो इट कैन हेल्प मी। दैट्स ऑल। Okay, that's like a very good and brief Yes. discussion on mentorship. I hope you guys enjoyed it a lot. That's all for this podcast. Let's see you again in the next podcast. Thank you so much.